नमस्कार। आप सभी लोग अपने अपने घरों पर कोविड-19 से बचने के प्रयासों में के साथ साथ अपना अध्ययन भी कर रहे होंगे। So students, as in our last topic we have talked about the electron transporting systems, in which we have to understand how the different electrons can be transported evenly, that with the help of which we can capable to complete the synthesis of the ATP. Then we have to come on the next topic, that is the embolic pathway. Generally, this topic is very easy because first of all we have to know what is this embolic pathway. Generally, if you have known about the metabolism, means what is the metabolic pathway? Means it is also known as the metabolic pathway. Why? Because there is a process of the catabolism and the anabolism. Both process can be take place with this pathways, right? Especially you can say according to the catabolism, you can say whenever any complex substance can be broken down and it's capable to provide a different products as energy or water or carbon dioxide, etc. In the same way, anabolic process, very synthesized process will take place, means जहाँ पर हमारे कुछ छोटी छोटी चीज़ों का मिक्सअप करके कुछ सिंथेसाइजेशन हो सकता है, चाहे वो डीएनए क्यों ना हो, right? So the both process are known as the metabolism, and that they can be capable to explain the especially about the such process which are known as the embolic pathway. So student, you can just understand with only this one. इसी डायग्राम के साथ आप आसानी से इस प्रोसेस को समझ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशली दिस embolic, especially used to denote the biochemical pathways involving both catabolism and anabolism. Means we can say the citric acid cycle acts as the central metabolic pathways, right, which can be completes the oxidative degradations, monosaccharides, fats and amino acids, right? But usually we can say the glucose, which can be generally primary substrate for the respiration, right, for the most of the organisms, and we can say all the carbohydrates are first converted into glucose. सबसे पहले जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे they can be converted to the glucose, and after that the process of respiration, the process of glycolysis will started over there, and we can say the different substances like the fats, प्रोटीन कैन ऑल्सो भी रेस्पायर। हम लोग सोचते हैं कि हमारी बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस के अलावा कोई रेस्पायर होता, नो, हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोलाइसिस के साथ कन्वर्जन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज एज वेल एज द ब्रेकडाउन ऑफ द फैट एज वेल एज द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन भी ऑल्सो टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, क्योंकि हमें एनर्जी केवल कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलती, हमें एनर्जी प्रोटीन से भी मिल सकती है, हमें एनर्जी फैट से भी मिल सकती है, राइट? सो वी कैन से स्पेशली द if we known about this glycolysis process, तो जनरली हमको जो ये पता है कि जो ग्लूकोज होगा वो क्या होगा, ब्रेकडाउन करेगा, इट कैन बी चेंज इनटू द पॉलीग्लाइकोलिक एल्डिहाइड और पैगल और पीसीएल, right? After that can be changed into the pyruvate, and then pyruvate change into the acetyl coenzyme, and that acetyl coenzyme can be entered into the Krebs cycle where it can capable to change up to the carbon dioxide. Means the total जो ग्लूकोज हमारा था सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल सब्सटेंस था, वो लास्ट में जाके कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के फॉर्मेशन से बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो सिंपली अगर हम देखें तो इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, राइट? और इसी तरीके से अगर हम मान लो लिपिड की भी देखते हैं तो लिपिड में भी यानी कि फैट्स में भी क्या होता है, दे कैन कैपेबल टू चेंज इन द फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। तो स्पेशली जो फैटी एसिड है वहाँ के बाद क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम उससे बन सकता है, जिसकी वजह से क्रेब्स साइकिल में जाएगा, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो सकता है। इसी तरीके से जो ग्लाइसरॉल है, ग्लाइसरॉल कैन बी डायरेक्टली चेंज इनटू द दिस पीसीएल पॉली, तो देखो ग्लाइसरल एल्डिहाइड, ठीक, फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड जो हम बता रहे थे आपको, तो ये जो ग्लाइसरॉल है इट कैन बी ऑल्सो कन्वर्टेड टू द पीसीएल और द फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड। So this can be also broken in the same way. तो इसमें हमारी भी क्या हो गई आपकी, this process also are known as the catabolic process. On the other hand, if we can talk about the protein, तो प्रोटीन हमें पता है, प्रोटीन सबसे पहले क्या होगा, प्रोटीन एंजाइम की मदद से ब्रेक करेगा और वो अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगा, और अमीनो एसिड के चेंज होने के बाद दैट अमीनो एसिड मे बी चेंज इनटू द पायरुवेट,
They may be converted into the acetyl coenzyme. They may be changed into the directly into the Krebs cycle. So ultimately, they all can capable to break down and capable to provide a large amount of energy, right? But still, we can say that these are only catabolic process, and evenly we are talking about amphibolic pathway is a metabolic one. So how the synthesis can be done? So students, you must think that on the according to the our body needs, हमारी बॉडी की मशीनरी के बेसिस पे, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही पायरुवेट में बी चेंज into the amino acid, and that amino acid can be changed into the protein. So we can say that is the anabolic process, right? In the same way, especially we can say ये प्रोसेस रहेगी. इसी तरीके से हमारा जो पायरुवेट है, इट मे बी चेंज इनटू द फैट्स ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट. हमारी बॉडी के अंदर अगर रिक्वायरमेंट चल रही है तो हम कह सकते हैं जो फॉस्फोग्लाइसिल एल्डिहाइड है दैट कैन बी अगेन चेंज इनटू द ग्लाइसरॉल, राइट? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं द बोथ प्रोसेसेस कैन बी टेक प्लेस इन आवर body. So with the help of such things we can capable to understand how the amphibolic pathway is a metabolic process, or both catabolic and anabolic are total. Especially you must think that especially if we talk about the anabolic pathways in that particular condition, it is always based on the requirement of the energy. एनर्जी जो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही कभी कभी ये प्रोसेस क्या होती है, रिवर्स करके जाती है. तो उसी के बेसिस पे हम इसको एनाबॉलिक पाथवे भी कह सकते हैं. सो दिस इज द जनरल प्रोसेस, राइट? आफ्टर दैट देयर इज अनदर प्रोसेस, आई थिंक एवरीबडी नो, दैट इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. इट इज वेरी इजी, सिंपल. अगर हम आपको एक वर्ड में बताना चाहें, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मीन्स जनरली व्हेनेवर द रेशियो ऑफ द different gases which are evolved or which are consumed into during the respiration process, right? Especially अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की तो हम सिंपल यही कह सकते हैं. तो डायरेक्टली अगर हम बात करें द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट और द ग्लूकोज, दैट इज ऑलवेज वन. क्यों? क्योंकि इफ यू आर रिमेंबर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, whenever during the carbohydrate can be break down with the help of presence of the oxygen, that is 6 molecule of oxygen, and it can capable to provide or evolve 6 molecule of the carbon dioxide. So the ratio between the evolved carbon dioxide evolved, that is always 6, right? And the volume of the oxygen which can be consumed or initiated, that is the 6. So this way we can understand about this one directly. Or if you want to about the अब आखिर ये होता क्या है, तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंज्यूम्ड रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. अब ये जो डिपेंड करता है, जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है, इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट, कि कौन सा मटेरियल है, किस सब्सटेंस का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हमें निकालना है, उसके बेसिस पे ही ये डिपेंड करता है, जिसकी मदद से हम जान सकते हैं कि विच इज नेसेसरी एंड हाउ मच द सच प्रोडक्शन इज फाउंड ओवर. तो स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ द फैट वो लगभग 1 से कम होता है, एंड इट इज कैन बी अप्रोक्स. अगर हम बात करें फैट की, दैट इज द 0.7, and if we talk about the protein, that is 0.9. So this way we can understand especially this respiratory quotient. And the last topic in some books, as I have already explained you, that is the anaerobic respiration and fermentations, in which I have explained you about the anaerobic respiration that can be classified into 2 categories, right? I think if you remember, generally the fermentation and anaerobic respiration differ according to the higher studies, but especially in our NCERT they have not shows
the different process in that particular condition. They can given a simple common process, because अगर हम सिंपल बात करते हैं तो जो फर्मेंटेशन है, तो फर्मेंटेशन के बेसिस पे फर्मेंटेशन दो टाइप की प्रोसेस हो जाती है. दैट इज कॉल्ड द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ द पायरुवेट इनटू द ethanol. That is called the alcoholic. And in the same process, if we can say that whenever the pyruvate can be break down into the lactic acid with the help of the lactate hydrogenase, right, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम उसे कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. सो जनरली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस वन. ध्यान रखिएगा, स्पेशली जब ये फर्मेंटेशन होता है इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन नहीं रहती. लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस की पूरी प्रोसेस है एटीपी की सिंथेसिस, वही सेम प्रोसेस इसमें भी रहती है. लेकिन वी हैव नॉट, बट केवल देयर इज ओनली वन थिंग कि यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. इसीलिए क्या होता है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में या फर्मेंटेशन की कंडीशन में जनरली द जो NADH हमारा ब्रेक करता है ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस, जब पायरुवेट में चेंज हो रहता है, उसमें केवल 2 ही ATP मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज हो पाता है. इस वजह से वहाँ पे और NADH नहीं सिंथेसाइज हो पाता है. सो ये प्रोसेस जनरली रहती है. सो स्टूडेंट, यू मस्ट कंप्लीट the notes of this lesson, and this way this lesson is completed. Thank you.